Hello, good evening, candidate. This is Rohit Srivastava from Lucknow Cavalier India branch, and today we will discuss about the upcoming FCAT paper. अभी FCAT का एग्ज़ाम आई थिंक तुम लोगों का 28, 29 और 30th ऑफ अगस्त को सिचुएटेड है. इट मीन्स कि द एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट is going to be held on the 27, 28, 29th of August in upcoming 2021 dates. Okay. सो अगर हम लोग सही कैलकुलेशन लगाएं तो आज हमारे पास हो गया है 5th of January. So from the 5th of July. So 5th of July to 5th of August. Then after that till the 28th August, approximate we have 5 to 5 1 month 30 days and remaining those 20 days. So approximate 50 days you candidate have. So in 50 days how you will prepare for your FCAT entrance exam, so that I will discuss today. So let's start. Okay, so at the time of starting, what we will do, we will just try to discuss how we can achieve maximum marks in this paper. Okay, so first I will tell you that this is the lady Avni Chaturvedi. You all, I think, have heard the name of this lady. So this is our first woman combat pilot, and she also have a two more person with him. That one is called Mohana Singh Jitarwal, and another is called Bhavna Kant. So these are the first three Indian women combat pilot. Okay, so this we are giving them the salute to got recruited in this Air Force Academy, and they are proud for our nation. Okay, now come again the topic. So the how to topic is how to prepare for FCAT 2021 entrance exam. Okay, so here we will discuss about the 45 days study plan in upcoming videos. So this is video series 1 of that particular video series what we will make, and remaining thing is what you guys have to pay attention, that because only the 50 days are left. Here I have mentioned 45 days. So 45 days ही समझो, and then 50 days है तो ज़्यादा prepare कर लेना, और क्या कर सकते हैं. Okay, so now coming upon the next one. So uh, this is my profile, Rohit Srivastava, and I am teaching this FCAT examination candidate. I can tell you that I start teaching at this place since, let's suppose, 2010 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ approximate, and today this paper was launched in front of us in 2011. They have done paper 1 of FCAT. So at that time they have a clear strategy, that 25 25 25 question strategy. So that 25 25 means 25 question maths, GS, English, reasoning. But the day by day they have changed the pattern, and after that now today what major changes they have done and what is the need of the paper, that we will discuss today. Okay, so now the next is what, if we will just call this paper, what the age criteria and what the selection procedure. So before that you guys can fill this form. It was available till yesterday. So online exam hoga 28, date is clear, 28 August, 21 August, 29 August, and then the age of those person who are willing to join this exam. So this will be from 23 to 27. So means many candidate in this age criteria who are coming, so they who have filled the form this time, तो वो तो अप्लाई करके अपने अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन पे लग जाएं, और जिन्होंने इस बार अप्लाई नहीं किया है, सो वो सारे के सारे कैंडिडेट नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से लगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर. ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस एफकेट एग्ज़ाम के बारे में डिटेलिंग की बात करते हैं. सो डिटेलिंग के नाम पर हमारे पास में क्या है कि एक तो हो गया नंबर वन. नंबर वन इज दिस,
That nationality, all Indian citizen can fill this form. Here eligibility should be there. So please don't underestimate this. Age. So flying branch के लिए those candidate जो कि NCC special entry के through जाना चाहते हैं, they should be the between the 20 to 24 year, 20 से 24 साल के होने चाहिए, और एज जो है 1 जुलाई को कैलकुलेट की जाएगी. तो एक बार उसको देख लेना तुम लोग, ठीक है. एंड जिसके पास में ऑलरेडी है ना पायलट लाइसेंस है, DGC अप्रूव्ड इंडिया में, सो उनको जो है एज का रिलैक्सेशन है. दे आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 26 ईयर, अगर 26 साल के भी हैं, देन ऑल्सो दे आर एबल टू फिल द फॉर्म. देन ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, तो ग्राउंड ड्यूटी में दोनों ही ब्रांच है हमारे पास, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. 20 to 26 ईयर, 20 से 26 साल के ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन फिल इट. एंड marital status you guys have to confirm about it. So at the time of commencement of course आप लोगों को जो है सारे के सारे को unmarried होना पड़ेगा, otherwise merit candidate के लिए this job is not suitable. That means इंडियन आर्मी की और एयरफोर्स की और नेवी की सारी वैकेंसी अनमेरिड कैंडिडेट्स के लिए ही है, ठीक है. सो नाउ वी कैन गो फॉर द after this FCAT eligibility. You guys have to prepare about the educational qualification. So in this educational qualification, number one, for the flying branch, if those candidate, so they should have their 50% marks in mathematics and physics in 10 plus 2 level, and they should 3 year 3 year with 60%, this much percentage of marks graduate degree they should have. Okay. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ग्राउंड ड्यूटी के लिए जाना है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है. अगर इंजीनियरिंग ब्रांच यानी टेक्निकल विंग के लिए जाना है, सो यू कैंडिडेट हैव टू सिक्योर 50% इन फिजिक्स मैथ्स एज इट इज 10+2 स्टैंडर्ड पर, और उसके बाद में 4 ईयर की तुम्हारे को जो है क्या करना है, बीटेक वाली एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है. और उसमें भी क्या है कि हमारे पास में जो है डिग्री का परसेंटेज सेम 60%. फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट्स के लिए फॉर्म है फॉर द क्रीमी लेयर कैंडिडेट. So it is mandatory that you guys have to pay attention on this form. Okay. Then अब जब ये फॉर्म का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट is 60%, एंड सो मीन्स इफ यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म दिस ईयर, सो अभी वाले फॉर्म में तुम्हारे पास में जो है FCAT एंट्री के थ्रू जो फ्लाइंग ब्रांच थी, उसमें मैन एंड वुमेन का कंबाइंड जो सीट था दैट इज 96 सीट्स. ओके. देन उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी में आ गए जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स कैंडिडेट थे, उनकी PC दैट 2028 मीन्स अप्रॉक्सीमेट 28 सीट ये हो गई, अप्रॉक्सीमेट 109 सीट ये हो गई, ठीक है. इसके अलावा ऑल दोज कैंडिडेट हु आर गोइंग फॉर द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए, they also have a enough number of seat, approximate 15 seat, 14 seat are here, and here you can see 57 seats are there. Then NCC candidates के लिए 10% seats तो वहाँ सीरियस से उठा के रखते हैं, एंड रिमेनिंग FCAT की 10% सीट्स NCC कैंडिडेट्स के लिए हो गई, ठीक है. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो हमारे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल हैं, उनके लिए अप्रॉक्सीमेट 28 सीट है. तो व्हेन यू गाइज विल काउंट, so you will see the number of seats are enough because you guys need only one seat to select it. Okay, so don't worry. मतलब sometime the candidate were saying कि अगर जो इसकी ज़्यादा सीट्स होती तो मैं निकाल लेता, तो मतलब हमें नौकरी केवल एक ही सीट पे चाहिए. तो ये कंफर्म कर लो तुम लोग सारे के सारे. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब जैसे कि ये बात हो गई, नंबर ऑफ सीट्स की बात हो गई हम लोगों की. सो अब एग्जामिनेशन सिलेबस पे बात करते हैं. तो एग्जामिनेशन सिलेबस मतलब आज का वैसे क्राइटेरिया तो ये था कि हाउ टू प्रिपेयर FCAT इन 45 डेज, कैसे तैयार करें. तो ये स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. अभी तो मैं ये बात करूंगा कि तुम्हारे पेपर में आता क्या है. तो पहली बात तो तुम्हारा पेपर जो सेगमेंटाइज है 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एंड 25 क्वेश्चन, यानी कि ये जो ऊपर मेंशन है यहाँ पर 100 क्वेश्चन, ये फर्दर कैटेगराइज इनटू 4 पार्ट 25 इंटू 4, और इस तरीके से 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 300 मार्क्स के हैं. तो एक तो ये बात हो गई. एंड दोज कैंडिडेट हु आर फ्रॉम द बीटेक बैकग्राउंड, दे शुड क्लियर दियर EKT पेपर 50 मार्क्स का, सॉरी 50 क्वेश्चन का ये भी है, 3 इंटू 150 मार्क्स का हो गया. तो ये दो पेपर हैं फॉर द BTech candidate, and for ground duty and BA BSc BCom candidate they can only opt the first paper 100 क्वेश्चन पेपर. ओके. अब पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं इसके लिए हम लोग जो है क्लियर कर लें. पेपर में तुम्हारे पास में क्या है कि पहले जो है जब इन 2011 जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, तब तो मैथ्स में 25 क्वेश्चन थे, और GS में 25 थे, इंग्लिश में 25 थे, रीजनिंग में 25 थे.
अब नए जमाने में क्या हो गया है कि इन रीजनिंग दे विल reduce approximate 7 to 10 question. Okay, again wait, in your reasoning, reasoning nahi maths mein, so in your mathematics they are reducing 5 to 7 question. ठीक है, और वो जो 5 to 7 question है वो 25 इसमें रीजनिंग में तुम्हारे बढ़ जाते हैं. इट मीन्स नाउ डेज रीजनिंग में अप्रॉक्सीमेट 32 क्वेश्चन है और मैथ्स में अप्रॉक्सीमेट 18 क्वेश्चन है, एंड बाकी का जीएस 25 क्वेश्चन एज इट इज, इंग्लिश 25 क्वेश्चन एज इट इज. तो इसका मतलब 100 क्वेश्चन 2 आवर का टाइम और इंटू 3 के अकॉर्डिंग 300 मार्क्स. ओके, निगेटिव मार्क में पर रॉन्ग क्वेश्चन पर 1 मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे. ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में. ओके, देन आफ्टर दैट, आफ्टर दिस होल थ्योरी, द सिलेबस स्ट्रक्चर. थोड़ा सिलेबस पे बात कर ली जाए तो सिलेबस में तुम्हारे पास में जनरल इंग्लिश है. तो इंग्लिश में तुम्हारे पास जनरल जो भी कंटेंट है, ऑल दोज कंटेंट रिलेटेड व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड एनी टाइम फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सारा का सारा इंग्लिश में है. ठीक है, सो इंग्लिश के बाद में हमारे पास में जनरल अवेयरनेस है. जनरल अवेयरनेस में अप्रॉक्सीमेट वो जो एक टॉपिक हम लोग किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, एंड एग्रीकल्चर. सो दिस मच थिंग इज इन अ जीके ऑफ दिस जनरल अवेयरनेस. ओके, बट स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा रहता है. इट मीन्स यू गाइज हैव टू प्रिपेयर अबाउट द फिक्स थिंग, वेरिएबल थिंग्स आर कमिंग लेस. Numerical ability, so here we have mentioned a less amount of syllabus. Approximate अर्थमेटिक का अप्रॉक्सीमेट 11 लेसन, ये तुम्हारे पेपर में आएगा, जिसमें सारा का सारा चैप्टर है. जैसे कि मान लो वन इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन, देन नंबर सिस्टम, वर्क एंड टाइम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे के सारे रहेंगे. और रीजनिंग में, रीजनिंग इज फर्दर कैटेगराइज इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल. सो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के मिलाकर अप्रॉक्सीमेट 30+ क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे पेपर के. ठीक है, अब ये तो हो गया जैसे पेपर की बात. पेपर के बाद में हम लोग जैसे यहाँ पर जो है हमारे पास में अभी लेटेस्ट में मैं तुमको बताऊँ, आई थिंक प्रीवियस सैटरडे, मतलब बीते सैटरडे या आज, अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 जुलाई, ठीक है, तो 5 जुलाई से जस्ट पीछे जाओ, मेरे ख्याल से लास्ट सैटरडे के पिछले सैटरडे को. तो दिस कैंडिडेट अमोद हैज केम एंड अमोद हैज secured 226 marks in his written FCAT exam. Okay, so Amod has given AFSB at SSB Varanasi board, and he cleared his SSB interview also. So you guys just take the motivation from this Amod. And remaining, last year we have given a all India rank 2, that Aanchal Dev, and she also secured 219 marks in written exam. Okay, so एक तो पहली बात तो ये होगी कि रिटन में अच्छे नंबर होने चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद में जब तुम्हारा जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो रिटन एग्जाम के बाद यू गाइज हैव टू गो फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. सो एसएसबी इंटरव्यू किसी भी एएफएसबी सेंटर पे हो जाएगा तुम्हारे. तो उसमें से जैसे कि एग्जांपल दूँ तो मैं पहले दिन का जो है तुम्हारा टेस्ट का जो शेड्यूल रहेगा वो स्टेज 1 बोला जाएगा. तो स्टेज 1 में यू गाइज हैव टू just they will check your documents, and after that they will send you for the psychological test for the stage 2. stage 2 में तुम्हारे पास एक होगा PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, और उसके साथ में एक OIR पेपर होगा, दैट इज रीजनिंग पेपर. एंड इसको क्लियर करने के बाद यू गाइज हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 4 days. ओके, फिर 4 days में तुम्हारे पास अलग अलग 8 साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, जिसमें SDT होगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, देन दैट TAT होगा, थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, देन SRT होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, देन तुम्हारा GTO का टास्क होगा. इसी बीच में तुम्हारा जो है इंटरव्यू रहेगा, वन इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल टेक योर इंटरव्यू. सो ये सारा का सारा तुम्हारा स्टेज 2 यानी डे 1 क्वालिफाई होने के बाद रहेगा. और उसके बाद में दोस्त कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, जिन्होंने फ्लाइंग ब्रांच को सेलेक्ट किया है, तो दोस्त कैंडिडेट शुड गो फॉर द CPSS कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, इसके लिए जाएंगे. this test is going for those all candidate who opted for flying. Okay, so flying वाले सारे कैंडिडेट को अपने लाइफ टाइम में एक बार CPSS का एग्जाम जरूर पास करना पड़ता है. ठीक है, तो those candidate who will pass it at a first time, so they should be allotted for the flying branch. But those who are not able to beat it at a first time, or either you are disqualified, so never
in a next time your life you are able to beat this paper. Okay, so just be serious about this. They will explain you how to clear this paper. Okay, now the next thing next thing is what, which kind of training you will take place. So after the selection procedure will be done, you guys will be called up for the training purpose by the Indian Air Force, and they will take you, and your fooding, lodging, messing and everything, खाना पीना रहना सारा का सारा अब वही देखेंगे। तो उसके बिहाफ पर है ना, हमारे पास में जो है एक एयरफोर्स एकेडमी है, वन इज दैट टू गवर्नड बाय द गवर्नमेंट। सो ये तुम्हारी जो है डुंडीगल में है, और यहाँ पर क्या हैदराबाद में, हैदराबाद से अप्रॉक्सीमेट 43 किलोमीटर दूर पर है। तो ये तुम्हारी जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल रहेगा, इस ट्रेनिंग में तुम्हारे को जो है क्या करेंगे कि फाइनली ट्रेनिंग के बाद में ये तुमको परमानेंट कमीशन ऑफिसर का पोस्ट करेंगे एज अ पायलट किसी भी एयर फोर्स स्टेशन पर। ठीक है, अब ये करने के बाद में भी तुम्हारे को जो है क्या है कि यू गाइज आर प्रोड्यूस्ड एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर टू द आर्मी एंड नेवी। मतलब कि यू फाइनली जब ट्रेनिंग खत्म हो गई, देन जॉब फिनिश अप हो गया, सो एट दैट टाइम दीज दे विल कॉल यू फॉर द training for the army and navy, all the prospects. Okay, now coming upon the next, the final question is coming. So why we are discussing this much, and what are the important thing so that you will join Cavalier India Lucknow branch or any of our branch for SSB interview. Okay, here in UP, that here in UP we are running with this organization since last 11 years. Okay, so means, and we are just old as how much, that 23-year-old coaching institute. So here what you will get, the first primary objective is for the SSB interview you have a trained and experienced faculty. Okay, means you guys can go through the our Cavalier Bangalore YouTube channel. Okay, so Cavalier Bangalore YouTube channel, you guys can see the quality of lectures given by these interviewing officer, GTO and psychologist, and so that you will understood that what quality we are going to provide in this lecture and session by the online and offline both mode. Okay, अब एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर कैविलियर लखनऊ ब्रांच में वी हैव स्टार्टेड फॉर 45 डेज क्रैश कोर्स फॉर द एफकैट प्रिपरेटरी कैंडिडेट। तो जो एफकैट की प्रिपरेशन करना चाहें वो सारे के सारे कैंडिडेट हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग अपना एफकैट का जो नया बैच है वो 6 जुलाई यानी कि जो है ट्यूसडे से स्टार्टअप कर रहे हैं। तो हमारा प्राइम टारगेट है कि अपकमिंग 28 जुलाई का, सॉरी 28 अगस्त का जो पेपर है वो किसी भी तरीके से तुम लोग एफर्ट करके क्लियर कर लो, इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा करेंगे क्या क्या हम लोग, है ना, एकदम क्लियर बात करते हैं। 2 to 3 आवर की क्लास करेंगे, उसमें हम लोग मैथ, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट जब हमारा ये पैक होने लगेगा तो इसी में बीच में हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर डिस्कस कर लेंगे। मॉक टेस्ट पेपर करते हुए हम लोग वीकेंड टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। वीकेंड टेस्ट के बाद में हम लोग थोड़ा ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब करने के बाद में जो है बिफोर बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू वी विल ट्राई टू प्रिपेयर अबाउट आर एसएसबी इंटरव्यू ऑल्सो। तो हम लोग एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी लगेंगे। सो जैसे जैसे हमारे पास में एफकैट का रिटन क्लियर हो जाएगा उसके बाद हमें डेट ऑप्ट करने का मौका मिलेगा, और उसमें अगर लेट सपोज कि यू गाइज आर ऑप्टिंग द डेट फॉर द 20-30 डेज, तो उस बीच में क्या कर सकते हो तुम लोग कि एसएसबी प्रिपरेशन के लिए भी लग सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस पे हम लोगों को काम करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं कि वी विल जस्ट स्टार्ट अ वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर दोज कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए, एफकैट एंड सीडीएस। ओके, सो क्या करना कि एक बार तुम लोग जो है हमारे यहाँ के लखनऊ कैविलियर इंडिया है ना, लखनऊ कैविलियर इंडिया के जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर तुम देख सकते हो कि जो है कैसा हम लोग आने वाले समय में लेक्चर्स अपलोड करते हैं और क्या प्रिपरेशन का स्टाइल रहेगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया, और इसके अलावा तुम सारे के सारे जो वीडियो देख रहे हो और जो भी एफकैट कैंडिडेट अपीयरिंग हैं, ठीक है, उनको तुम ये वीडियो शेयर भी कर देना और उनसे बोल देना कि जो है थोड़ा सा एक बार अगर कोई डाउट हो तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें कि जो है काउंसलर विल काउंसिल यू दैट फॉर
व्हाट स्ट्रेटजी यू गाइस कैन फॉलो फॉर दिस एग्ज़ाम, ये तुमको बता देंगे एक बार में, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे आते हैं हम लोग। अपना जो है ये रहा कि ये नंबर रहेंगे, इसको तुम लोग देख लेना अपना डिस्प्ले पर, जो भी इंक्वायरी हो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, एफ कैट के टारगेट बैच की डेट हमारे पास 5 जुलाई, 10 जुलाई, 15 जुलाई, किसी भी डेट पर आकर एडमिशन लो। एंड व्हेन यू विल सिट विद अस देन वी विल गिव यू द मोर प्रिपरेशन। हाँ, मतलब ऐसा कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, तो तुम सारे के सारे क्या कर सकते हो कि सारे के सारे जो एग्जामिनेशन के लिए एफ कैट के लिए लगे हो, तो तुम सब के सब आओ, बढ़िया प्रिपेयर करते हैं। और वी आर प्लानिंग दैट यू गाइज विल सिक्योर 250 प्लस मार्क्स। ओके, सो 250 प्लस मार्क्स इज अ हाइपर बुल यू कैन से, बट कम से कम 200 से 250 के बीच में नंबर तो आ जाएंगे। एंड इसका अगर मैं एक छोटा कैलकुलेशन दिखाऊं, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताऊं कि अगर हम लोग पेपर में आओ जरा 2 मिनट देखना जैसा ना, अगर हमारे पास में हम लोग SSB 300 मार्क्स की होगी, और देन एफ कैट का जो हम रिटर्न पेपर देने जा रहे हैं वो भी 300 मार्क्स का है, तो दोनों हमने ऐड ऑन किया तो 600 मार्क्स का। इफ़ यू गाइज विल सिक्योर 220 मार्क्स इन योर रिटर्न पेपर, सो 220 माइनस कर दो इसमें से। 220 माइनस करने के बाद में यहाँ से 80 आ जाएगा, और यहाँ से 5 में से 2 गया 3। अब बताओ, यू आर नॉट दिस मच कैपेबल दैट यू विल सिक्योर 380 मार्क्स आउट ऑफ दिस। देखें जरा सा, 5 में से 2 गया 3। हाँ ठीक तो है, देखो। हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि 380 मार्क्स के लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है। अगर तुमने एसएसबी में भी 220 सिक्योर किया तभी तुम्हारा क्वालिफाई होगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 440 मार्क्स का टारगेट मैं दे रहा हूँ। तो तुम लोग एक काम करो, अगर तुम रिटर्न में ज़्यादा अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें एसएसबी में थोड़ा कम एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहीं पर इसको पैकअप करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू यू गाइस। एंड मैं रोहित श्रीवास्तव पैकअप करता हूं, और नेक्स्ट टाइम पर हम लोग जो है अपने क्लास सेशन के लिए स्टार्टअप करेंगे, है ना। और उन्हीं में ही जो है हम लोग अपने वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि हमें अब क्या करना है और कैसे एफ कैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, गुड लक, ऑल द बेस्ट।